اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر منظر عباس زین کی طرف سے آپ سب تمام طلباء کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس موضوع پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، جن میں ہم آج پڑھیں گے رائٹنگ میٹیریل کے حوالے سے، ذرائع تحریر کے حوالے سے. تو رائٹنگ میٹیریل، ذرائع تحریر کہ ہم نے تحریر اگر سیکھی ہے تو ہم کس کس سٹیپ اور کس کس مرحلے سے گزر کر ہم تحریر کے جدید آج کے اس دور میں پہنچے ہیں. آج کی جو تحریر ہے وہ کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈز میں آ چکی ہے، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ چیزیں وجود میں نہیں آئی تھیں تو یہ سب جو تحریر تھی یہ مٹی پر، پتھروں پر، لکڑی کے تختوں پر، چمڑے پر اور مختلف دھاتوں پر تحریر کی جاتی تھی. ہم تھوڑا سا اسٹڈی اس کو کر لیتے ہیں. آئیے. جب خداوند قدوس نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کو بہت سی صفات سے نوازا، جس کی بنا پر وہ جلد ترقیوں سے ہمکنار ہوتا گیا. ایک صفت تو اس کی جسمانی ساخت تھی، اس کے بعد اس کی مزید ترقی کا سبب اس کی زبان بنی. اس زبان کی بدولت انسان کے لیے خیالات کا دوسروں تک پہنچانا سہل ہوا، یعنی آسان ہوا. زبان اگرچہ تبادلہ خیالات کا مؤثر ذریعہ تھی، لیکن بالکل ناپائیدار. کیونکہ دیکھیں، زبان تو ہونا اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب زبان کے لیے ذریعہ تحریر ہی نہیں ہوگا تو ہم اس زبان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم اس زبان سے ادا شدہ الفاظ کو کیسے ضبط تحریر میں لا سکتے ہیں. ان خیالات، باتوں اور تجربات کو محفوظ رکھنا انسان کے بس میں نہ تھا، کیونکہ انسانی حافظہ اتنا کامل نہ تھا کہ دنیا جہاں کے تمام معاملات کو ذہن میں سمویا جاتا. نتیجتاً انسان کتابت پر مجبور ہوا. یہی وہ نفیس فن تھا جس کی بدولت انسان اپنے آباء و اجداد کی علمی جائیداد کا وارث بن گیا. ہر نئی ایجاد میں مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس طرح کتابت کے بعد لوازمات کتابت کی ضرورت کا شدید احساس ہوا. لوازمات کتابت میں متعدد اشیاء آتی ہیں، لیکن کاغذ ان میں اہم ترین عنصر تھا. کاغذ کی ایجاد سے قبل مکانات کی دیواریں، پتھر کی چٹانیں، برتن، لوہے، تانبے اور پیتل کی پتریاں کتابت کے لیے یک کے بعد دیگرے مستعمل ہوئیں، یعنی استعمال میں لائی گئیں، جن کے ہزاروں نمونے آج بھی محفوظ ہیں. ذرائع تحریر سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کو تحریر کے طور پر استعمال کیا جائے. دور حاضر میں دوسرے جدید ذرائع تحریر کے علاوہ کاغذ مؤثر ذریعہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والے مختلف ذرائع تحریر بدلتے رہے. اب ہم ذیل میں ان ذرائع تحریر پر مختصر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے ہے پتھر. ابتدا میں انسان نے اپنے خیالات کو پتھروں پر منتقل کر کے دوسروں تک پہنچایا، بلکہ خیالات کو محفوظ بھی کر لیا. پتھر پہ نقوش دنیا کی اول ترین تحریریں ہیں. لکھنے کا طریقہ: پتھر جو انسان کو ماحول میں بآسانی میسر تھے، ان پر کسی سخت نوکدار دھات کے ذریعے کھرچ کر لکھا جاتا تھا. ان پتھروں کا سائز 4 مربع انچ کے قریب تھا، جنہیں قطبے کہا جاتا ہے. پتھر پر تحریر دیر پا ثابت ہوئی. آج بھی اس پرانی تحریر میں پکٹوگراف تصویری ریکارڈ موجود ہے. 5500 قبل مسیح کے زمانے کے پتھر کے ٹکڑے برٹش لائبریری میں موجود ہیں. پتھر پر لکھائی کی ایک تختی نیو یارک لائبریری میں بھی موجود ہے. فراعنہ مصر کے مقبروں، مکانوں اور مندروں میں ایسے
कतबे या कुतबे आम इस्तेमाल में लाए जाते थे। पुरानी तहज़ीबों के पत्थरों पर लिखी तख्तियाँ मिली हैं। मिस्र के अलावा ईरान के मशहूर शहर अस्तहर के खंडरात में एक पहाड़ की सपाट चट्टान पर कंदा तहरीरें आज तक मौजूद हैं। इनको 3 ज़बानों फ़ारसी, एलमी और बाबली में कंदा किया गया था। इंसान के तहरीर करदा निशानात अभी तक उल्टा मीरा और लासाक्स के गारों में मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत में राजा अशोक के कुतबे आज तक महफूज हैं। हड्डियाँ, दूसरा जो ज़रिया है तहरीर वो है हड्डी। इन इलाक़ों में जहाँ जंगलात पाए जाते थे वहाँ लोग जानवरों का शिकार करके गोश्त खा लेते थे और हड्डियाँ तहरीरी मवाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। चीनी लोग हड्डियों और कछुओं के शेल को तहरीर के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तरीका निस्बतन आसान और सस्ता था। रोमियों ने हाथी दांत को तहरीरी मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया। लिखने का तरीका, हाथी दांत या आम हड्डियों की तख्तियों पर नोकदार चीज़ से लिखते थे। ओहदे कदीम में हड्डियों पर ख़यालात मुंतकिल करने का आम रिवाज था। तीसरा है लकड़ी की तख्तियाँ। मिस्र में लकड़ी के तख्तियों पर लिखने का रिवाज आम था। ऐसी कुतब फ़राना मिस्र के मकबरों से खुदाई के दौरान मिली हैं। इसके अलावा रूमी, चीनी और यूनानी इन्हें इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि जर्मनी के बाज़ कबाइल में आज भी मुस्तमिल हैं। बनाने और लिखने का तरीका, लकड़ी की तख्तियाँ आम तौर पर मुरब्बा शक्ल की बनाई जाती थीं। एक कोने में सुराख होता। सुराख इसलिए रखा गया कि इनमें मजबूत रस्सी या डोरी डालकर पिरो लिया जाए। रूम वाले लकड़ी को काट कर तख्ती बनाते, फिर साफ़ और हमवार करके ऊपर मोम चिपकाते, फिर सुखाने के बाद स्याही लगाकर लिखा करते थे। इस पर तहरीर बहुत खुश ख़त लिखी जाती। ऐसी तख्तियाँ आज भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अगरचा अनमिट स्याही बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तख्ती पर तहरीर की हौसला अफजाई आज भी ओहदे माजी की तरह की जाती है। धातें, मेटल्स, बाबली और मिस्री धात की बनी मोहरों को तस्वीर छापने और मट्टी और मोम पर पिक्टोग्राफ तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक बेलन नुमा मोहर की मदद से एक मुकम्मल पैराग्राफ मट्टी की तख्ती पर एक ही दफ़ा घुमाने से मलमा कर दिया करते थे। अलावा अज़ीं कदीम लोग धाती कलम भी धाती तख्तियों और मट्टी की तख्तियों पर लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। चीन में 1500 कबल मसीह के ऐसे छल्ले पाए गए हैं जिन पर तहरीरें मौजूद हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि लोग धातों को लिखाई के मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। मट्टी की तख्तियाँ, क्ले टैबलेट्स। क्ले टैबलेट्स, मट्टी की तख्तियाँ। मिस्रियों ने पेपायरस को बतौर ज़रिया तहरीर इस्तेमाल किया, लेकिन दजला और फ़ुरात की वादियों में ये पौधा नापीद था, इसलिए मजबूरन इन्हें पेपायरस की बजाय मट्टी की तख्तियों पर लिखना पड़ा। गीली मट्टी पर ठप्पे से लिखने से एक और शक्ल बनी जिसे वेज शेप कलम नुमा कहते हैं। बनाने और लिखने का तरीका, चिकनी मट्टी को गीला करके आटे की मानद गूंद लिया जाता। इसके बाद थोड़ी थोड़ी मट्टी लेकर इसके चौकोर या लंबे गोल टुकड़े बनाए जाते। इनको कदरे मोटा बनाया जाता था और इन पर किसी नोकदार कलम नुमा चीज़ से जो कुछ लिखना होता कंदा कर दिया जाता। मट्टी की तख्तियाँ सूखने के बाद सख्त हो जाती और फिर इन्हें आग में पकाकर मजबूत कर लिया जाता और लंबी मुद्दत तक महफूज रहती। 1852 में सर A.H. लियार्ड ने नैनवा के खंडरात में नैनवा के बादशाह आशुरबनीपाल 626 ta 668 कबल मसीह का कुतुब खाना दरियाफ़्त किया, जो 22,000 मट्टी की तख्तियों पर मुश्तमिल था। ये तख्तियाँ आज भी ओहदे कदीम की याद ताज़ा करती हैं। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में महफूज हैं। इन पर मेखी हरूफ की तहरीरें हैं। इन तख्तियों की लंबाई 11 इंच से 12 इंच तक बताई जाती है। 6 नंबर पर है पेपायरस। दरियाए नील के किनारे पर खुद रो पौधा उगता था जिसका नाम पेपायरी था, जिससे बाद में पेपरस नाम का कागज़ बना।
ये पौधा दरियाए नील के किनारे कसरत से उगता था। इस पौधे का तना 3-4 इंच से यानी ज़्यादा भारी भरकम हुजम का ना था। इसकी छाल से लिखने के लिए कागज़ नुमा चीज़ बना ली जाती थी। लिखने के लिए ये चीज़ खालों, पत्थरों, हड्डियों के मुकाबले में कहीं बेहतर थी। अंग्रेज़ी लफ्ज़ पेपर दरअसल पेपायरस से माखूज़ है। पेपायरस हमारे मौजूदा कागज़ से कहीं ज़्यादा नरम होता था। इसमें ये खसूसियात भी थीं कि स्याही जल्द चूस लेता था, और ख़ामी ये थी कि एहतियात से ना रखा जाता तो फट जाता था। पेपायरस का इस्तेमाल 2000 कबल मसीह से शुरू हुआ। बाज़ मौरख़ीन का ख़याल है कि इस पर लिखने का आगाज़ 4000 साल कबल मसीह हुआ। अहले मिस्र अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पेपायरस रोम, यूनान और दूसरे मुल्कों को बरामद किया करते थे। पेपायरस तैयार करने का तरीका इसका तैयार करना आसान था। पौधे के तने के 1 फुट बराबर पतले पतले टुकड़े काट कर बना लिए जाते थे और इन्हें एक मेज़ पर रख दिया जाता था। पौधे से उतारी हुई छाल को अच्छी तरह घोल कर गूदा बना दिया जाता था। फिर इस गूदे को पतले टुकड़ों पर फैलाकर और दबाकर इन्हें कागज़ जैसी शक्ल दे दी जाती थी। खुश्क होने पर इस्तेमाल में लाया जाता था। इब्तदा में सिर्फ़ एक जानिब लिखा जाता था, लेकिन बाद अज़ां दोनों जानिब तहरीर किया जाने लगा। इस पर लिखने के लिए सरकंडा या परिंदे का पर बतौर कलम इस्तेमाल होता था। याद रहे कि कलम की इजाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने की। पेपायरस की रंगत जर्दनुमा भूरी थी। पानी इसके लिए मुज़र था। चुनाचे मिस्र समेत बहीरा रूम के जिन मुल्कों में बारिश कम होती थी, पेपायरस सदियों तक महफूज रहा। पेपायरस पर लिखने के लिए सुर्ख रोशनाई, गूंद और आला किस्म की सुर्ख मिट्टी से तैयार की जाती थी। चर्मी कागज़। मुल्क के रोम में परगामम के लोगों ने भेड़ और बकरियों की रंगी हुई खालों को कागज़ के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चर्मी कागज़ पेपायरस से यकीनन पायदार था, मगर इस पर लागत निस्बतन ज़्यादा आती थी। चर्मी कागज़ की तैयारी, साथ में इसकी जो है वो तस्वीर और अशकाल भी दी गई हैं, आप इन पर गौर करें। इसमें मुख्तलिफ़ जानवरों, ख़ास तौर पर बकरी या भेड़ की खालों को लेकर गीले चूने में डबोते थे, जिसके बाद इस खाल के बाल और गोश्त आसानी से उतारा जा सकता था। चूने में डबोने से चिकनाई वाले मादे ख़त्म हो जाते थे। चमड़े को रंग भी किया जाता था। फटकड़ी में रगड़कर इस चमड़े की सफाई की जाती। इसके बाद इसे सुखाते थे। चूना रगड़कर पतली और मुलायम तह बनाकर इसे लिखाई के काबिल बनाते थे। सूखने के बाद खाल बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत इख्तियार कर लेती, जिनको मुख्तलिफ़ साइज़ों में काट कर साफ़ सुथरा बना लिया जाता था और बिल्कुल पेपायरस की शीटों की तरह बन जाते थे, जिन पर तहरीर पेपायरस की निस्बत ज़्यादा नुमायाँ और भली मालूम होती। इसका इस्तेमाल यूँ 500 कबल मसीह में शुरू हो गया था, मगर आम इस्तेमाल 200 कबल मसीह में हुआ। कहा जाता है कि जब रोम के बादशाह यूमीनस ने एक अजीम कुतुबखाना तैयार करने के लिए बतलीमूस शाह मिस्र को हुक्म दिया कि वो अपने कुतुबखाना में इस तरह का चर्मी कागज़ लाकर रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ज़राए तहरीर के बारे में डिस्कस किया, जो कि आज से 5-6 हज़ार साल कबल जो इस्तेमाल किया जाता था। आज हम तहरीर के लिए लेटेस्ट किस्म के कागज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, टैब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम अगर तारीख़ में जाएं तो हमें पता चलता है कि हमने तारीख़ में जो लिखने की इब्तदा है, ज़रिया तहरीर हमारा पत्थर था, मट्टी थी, लकड़ी थी, पत्ते थे, दरख्त थे, चमड़ा था, पेपायरस था। ये जो सारी चीज़ें हैं हमने जो है वो तहरीर के लिए इस्तेमाल की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।